Good morning, dear students. In last lecture, we have explained very important concept about coagulation process. That what is coagulation? We know that the stability of lyophobic sol is due to the presence of charge of colloidal particles. If somehow the charge is removed and the particles will come nearer to each other to form coagulate and settle down under the force of gravity. This process is known as precipitation of the sol. But which type of ways for the carried out for coagulation process? We have explained the only name of this process by electrophoresis, by mixing two oppositely charged sol, by boiling, by persistent dialysis, and by addition of electrolytes. Now we will explain this different type of process. So first of all, by electrophoresis. The question is here, this is the coagulation process of colloidal solution. So first process is here by electrophoresis. चलिए अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है. वी नो दैट द colloidal particles move towards oppositely charged electrodes, get discharged and precipitates. अभी क्या होता है देखिए, आपको शायद याद होगा कि यू शेप की हमने ग्लास ट्यूब ली हुई थी, उसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन भरा था. प्लेटिनम रॉड्स है वो दोनों एंड में हमने ऐड किए हुए थे. उसके बाद हम करंट पास कर रहे थे, तो जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो आइदर एनोड और कैथोड की साइड अट्रैक्ट हो रहे थे. बट अगर उस कोलोइडल पार्टिकल्स का अट्रैक्शन हो गया तो समझ लीजिए उसका चार्ज चला गया, और अगर चार्ज चला गया तो वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे. इसका मतलब है कि कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी उसमें से रिमूव हो गई और वो उसका कोएगुलेशन हो गया. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम चार्ज फाइंड करने के लिए करते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं रहता है, उसका वो अनस्टेबल हो जाता है, उसका चार्ज रिमूव हो जाता है. सो the colloidal particles move towards oppositely charged electrode and get discharged and precipitate. So this is the first process. With the help of this process coagulation takes place. अगर हम चार्ज फाइंड करने जाते हैं तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस ये कोएगुलेशन के लिए जानी जाती है. सेकेंड वन, बाय मिक्सिंग टू oppositely charged sol. देखिए इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. देखिए when oppositely charged sol, when mixed in almost equal proportion neutralize their charge and precipitates. देखिए अभी क्या होता है, अगर समझ लीजिए कि आर्सेनियस सल्फाइड का जो सॉल है वो नेगेटिवली चार्ज है,
इज इट क्लियर, वो नेगेटिवली चार्ज है। बट अगर मैं उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन ऐड करता हूं तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है। मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझाता हूं कि इस तरीके से हो सकता है। देखिए AS2S3, this is arsenious sulfide, negatively charged colloids. If we want to precipitate arsenious sulfide, we will add positive charge solution just like as aluminium 3 plus, बेरियम 2 प्लस और सोडियम प्लस। अगर समझ लीजिए इस नेगेटिव चार्ज वाले कोलोइडल सॉल्यूशन में मैं ये तीन में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूं तो इसका कोएगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसमें मैंने ऐड कर दिया पॉजिटिव चार्ज। बट इसमें एल्यूमिनियम 3 प्लस इसका कोएगुलेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, उससे लेस इफेक्टिव बेरियम 2 प्लस, इससे लेस इफेक्टिव सोडियम प्लस। बट ये इफेक्टिवनेस इसकी क्यों ज्यादा हो गई? द रीजन इज सिंपल एंड वेरी क्लियर दैट द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस इज हाई। व्हेन द चार्ज इज हाई, coagulation process or precipitation process will takes place very effectively. So the charge is higher, coagulation process will takes place effectively. So arsenious sulfide के कोएगुलेशन के लिए एल्यूमिनियम 3 प्लस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, उससे कम इफेक्टिव रहेगा बेरियम 2 प्लस और इससे कम इफेक्टिव रहेगा सोडियम 2 प्लस। सो ग्रेटर द वैलेंसी, the power, greater the power, it goes coagulation process very easy. This rule is given by Hardy and Schulz. So यहां पर कौन सी प्रोसेस यहां पर हो गई? देखिए ग्रेटर द पावर और ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर द coagulation. Okay, so oppositely charged salt when mixed in almost equal proportion, it neutralize their charge and precipitation will take place. We have arsenious sulfide solution, we are adding aluminium 3 plus, barium 2 plus, Na plus. It is opposite charge than for arsenious sulfide, so the process will take place. So the greater the power, greater the coagulation. इस रूल को डिस्क्राइब किया था हार्डी एंड शूल्स ने, इसीलिए इस रूल के मुताबिक हम यहाँ पर कोएगुलेशन प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है। समझ लीजिए मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, अगर इसका मुझे कोएगुलेशन करना है तो मेरे पास कौन कौन से इफेक्टिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्यूशन है? देखिए FeCN4 ये रहा 4 माइनस, PO4 ये रहा 3 माइनस, SO4 ये रहा 2 माइनस, Cl माइनस ये रहा 1 माइनस। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है, इसमें मैं नेगेटिव चार्ज ऐड करूंगा तो जिसका पावर ज्यादा वो कोएगुलेशन में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल है, उसका अगर मुझे कोएगुलेशन करना है तो इस ऑर्डर में मैं जा सकता हूं। ओके, सो दिस इज ऑपोजिट चार्ज सॉल्यूशन की मेथड। बट इसका जो भी मैं अमाउंट इसमें ऐड करने वाला हूं उस अमाउंट को बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू इसका मतलब क्या है आपको बताऊं? जिसका पावर हायर होगा ना उसकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी, और जिसका पावर हाई उसकी रिक्वायरमेंट कम, तो उसकी कम रिक्वायरमेंट रहेगी, उसकी उससे ज्यादा रहेगी, इसकी उससे ज्यादा रहेगी, इसके उससे भी ज्यादा रहेगी। उस वैल्यू को बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, उसका यूनिट होता है वो मिलीमोल पर लीटर में होता है। ओके, सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, this amount is known as कोएगुलेशन वैल्यू। जो अमाउंट हम कोएगुलेशन करने के लिए ऐड कर रहे हैं उस अमाउंट को कोएगुलेशन वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो मेथड आप समझ रहे हैं? ये सेकंड कौन सी कोएगुलेशन की मेथड है? तो अगर हमें किसी भी कोलोइडल सॉल्ट का कोएगुलेशन करना है तो हम उससे ऑपोजिट चार्ज वाला
कोई कंपाउंड उसमें ऐड करेंगे। तो आर्सेनियस सल्फाइड का अगर हमें कोएगुलेशन करना है तो हम एल्यूमिनियम 3+, बेरियम 2+ और Na+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हार्डी और शुल्स ने ऐसा बताया कि जिसकी पावर हायर होगी वो कोएगुलेशन करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मीन्स उसकी जो जरूरियात है वो कम रहने वाली है। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज 16 है तो ये सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसमें सबसे कम जरूरियात पड़ेगी, कम नीड किसकी होगी तो FeCN4 4- की, क्योंकि उसका चार्ज हायर है। तो उसकी जो अमाउंट हम ऐड करने वाले उस मिनिमम अमाउंट को बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। तो ये हमारे पास ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स इट कोज द कोएगुलेशन प्रोसेस। तीसरी यहां पर इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग करते ही हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन समझ लीजिए मिल्क है, तो अगर मिल्क को हम बॉइल करते हैं तो क्या होता है, उसकी फैट ऊपर आ जाती है ना। पहले वो फैट अंदर पड़ी थी कोलोइडल फॉर्म में, बट बॉइल करने के बाद वो फैट बाहर निकल गई, ऊपर आ गई, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन हुआ, बट वो हमने क्या प्रोसेस की यहाँ पर, बाय बॉइलिंग प्रोसेस हुई। सो व्हेन अ सॉल इज बॉइल्ड its layer, it's reduce the charge of particles, ultimately it leads to settling down in form of precipitate। settling down हो जाता है, उसकी जो फैट होती है वो ऊपर की सतह पर आ जाती है और कॉलॉइड्स यहाँ पर कॉलॉइडल नहीं रहता है, उसका कोएगुलेशन हो जाता है। ओके, तो ये हो गया बॉइलिंग के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। देन बाय पर्सिस्टेंट डायलिसिस, ये भी प्रोसेस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। डायलिसिस हमने पढ़ा हुआ था ना, डायलिसिस में क्या हुआ था, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, उसकी हमने बैग बनाई थी, उस बैग में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड किया था, उसके बाद हमने करंट भी पास किया हुआ था। तो ये डायलिसिस है वो इलेक्ट्रोलाइट रिमूव करने के लिए होता है, पर इलेक्ट्रोलाइट रिमूव जब करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है और अल्टीमेटली उसको भी कोएगुलेशन हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे सामने डायलिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए उसमें क्या होता है, सो व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is added, the colloidal particles are precipitated। जब इलेक्ट्रोलाइट का एक्सेस अमाउंट ऐड हो जाता है तो यहां पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बट उसका रीजन क्या है चलिए वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। द रीजन इज दैट colloids interact with colloidal solution, interact with ions carrying opposite charge। present on the surface of colloids causes न्यूट्रलाइजेशन। और अगर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर हो गई तो ये यहां पर हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन। ये शुल्ज हार्डी के रूल के जैसी ही इंफॉर्मेशन आ गई, बट अगर हमें लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबल करना है तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड करना ही पड़ेगा, बट अगर उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा ऐड हो जाता है तो यहां पर कोएगुलेशन प्रोसेस हो जाती है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रोसेस दैट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डियर स्टूडेंट्स, में इसके साथ मैंने आपको शुल्ज हार्डी रूल और कोएगुलेशन वैल्यू नाम के डेफिनेशन भी आपको करवा दी है, उसका फोटो मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप सब
समझेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर कोएगुलेशन की प्रोसेस हो गई। ओके, तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन की कोएगुलेशन की प्रोसेस थी उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आप सबको पढ़ा दिया है। अभी इमल्शन की प्रोसेस हमें आगे पढ़नी है, बट इमल्शन की जो प्रोसेस है वो डिलीटेड टॉपिक में चली गई है, तो वो इमल्शन के बारे में आपको मैं एमसीक्यू के बेस पर बातें करवा दूंगा। कोलोइड्स अराउंड अस वो भी यहाँ पर निकल गए। अभी लास्ट ही क्वेश्चन बाकी है, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। एक चैप्टर एक ही क्वेश्चन अभी हमें पढ़ना है, बट मैं आपको 2 लेक्चर और लूंगा ताकि जो भी गुजकेट के लिए और जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें कवर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए ये कोएगुलेशन की प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमने आज पढ़ ली है। अच्छी तरीके से आपको थियरी भी उसकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाए। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर।